Hello everyone, today's chapter 7 is Grandpa Fights an Ostrich. Before starting the chapter, starting this, we will read about an ostrich. An adult ostrich is 7 to 10 feet tall. It weighs 100 to 160 kg. Ostriches are large flightless birds, means they can't fly. They live in the dry, hot and woodland in Africa. They can run at the speed of 70 km per hour. Ostriches fight with their legs. They kick forward because that's the direction in which their legs bend. Each two-toed foot has a long, sharp claw. A solid kick can kill a lion also. Clear? Now let's start. Before my grandpa joined the Indian Railways, he worked for a few years for the East African Railways. It was during this time that he had this famous encounter. Encounter means unexpected meeting with an ostrich. So here is a story in his own words. Here an author is telling the story about his grandpa where he met with an ostrich. So let's start the story. I was engaged in laying of a new railway line. This story is in the words of grandpa only. Clear? So I was engaged in the laying of a new railway line. I lived in a small township, but my work was some 12 miles away. I had to travel and from the work site on horseback. What grandpa is saying? Grandpa is saying he was working in a railway line. He was laying a new railway line, and for his work he had to travel 12 miles away, and that time he used horseback, means he ride on horse. Come to page number 100. One day my horse had a small accident, so I decided to walk to work. I knew a shortcut through the hills that would save me about 6 miles. This shortcut went through an ostrich farm or camp as it was called. It was the breeding season. I knew that male birds were very aggressive in breeding season, ready to attack at the slightest provocation. But I also knew that my dog would scare away any bird that might try to attack me. Though it may seem strange, the fact is that even a big ostrich about 9 feet tall will run faster than a racehorse at a sight of a small dog. So I felt quite safe in the company of my dog. What happened? What grandpa is saying? Grandpa is saying कि एक दिन क्या होता है, जो उनका हॉर्स था उसको ही मेट विद एन एक्सीडेंट, सो ही डिसाइडेड टू वॉक दैट डे. तो उनको एक शॉर्टकट पता था, बिकॉज डेली ही ट्रेवल 12 माइल्स. तो उनको एक शॉर्टकट पता था. ही न्यू अबाउट द शॉर्टकट जो हिल से होकर जाता था, और उस रास्ते में ऑस्ट्रिचेस थी उनका फार्म आता था. ठीक है, वो शॉर्टकट था, पैदल था, उनके 6 किलोमीटर सेव हो रहे थे. तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना पता है कि यहाँ पर ना एक ऑस्ट्रिच फार्म है, एंड दैट टाइम वाज द ब्रीडिंग टाइम. दिस टाइम जो मेल ब्रीडिंग टाइम मीन्स मेकिंग यंग वंस. ओके, तो मेल जो होते हैं, मेल ऑस्ट्रिचेस होते हैं, दैट टाइम दे बिकेम वेरी एग्रेसिव. वो बहुत खूंखार हो जाते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है अगर उनको कोई जरा सा भी डिस्टर्बेंस मिलता है तो. लेकिन जो ग्रैंडपा थे, ही वॉज क्वाइट ओके, कि उनको कोई डर नहीं था, बिकॉज ही वॉज गोइंग विद हिज डॉग. जो डॉग्स होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, वो डॉग को देखकर भाग जाती हैं. तो ही वॉज नॉट हैविंग एनी scary feeling. Clear? When I reached the camp, I climbed through the wire fencing and keeping a good lookout, dodged across the open spaces between the thorn bushes. Now and then I saw a few birds feeding some distance away. ही वॉज गोइंग, वो जा रहे थे, मतलब ही वॉज इंजॉइंग हिज वॉकिंग. बट क्या होता है कि उन्होंने ये भी देखा कि जो बर्ड्स हैं दे वर फीटिंग देयर, वो वहाँ पर अपना फीड कर रही थी. आई हैड गॉन अबाउट हाफ अ माइल फ्रॉम द फेंसिंग व्हेन माई डॉग स्पॉटेड अ हेयर. जब वो भी हाफ माइल ही गए थे तो उनके जो डॉग ने एक हेयर को देख लिया. हेयर इज जस्ट लाइक रैबिट. नाउ चेजिंग हेयर्स वॉज दैट डॉग्स पैशन. अब आपको पता है जो डॉग होता है उनको तो हेयर मीन्स यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज जस्ट लाइक अ रैबिट. उनको चेस करना बहुत पसंद होता है, उनका पैशन होता है. आई ट्राइड कॉलिंग हिम बैक बट आई न्यू इट वॉज होपलेस. अब जो ग्रैंडपा थे वो उसको बुलाते रहे अपने डॉग को कि वो वहाँ ना जाए, बट ऐसा ये होपलेस था. ऐसा हो नहीं सकता था कि जो डॉग है वो वापस आ जाए रैबिट को छोड़कर. आई डू नॉट नो वेदर इट वॉज द डॉग बार्क or my own shout, but what I was avoiding immediately happened. The ostriches were scared and began darting to and fro. अब जो वो चाहते थे कि जो ना हो वही हो गया. अब
आई डोंट नो वाई इट हैपेंड कि वो इतनी तेज, जो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं इतनी तेज चिल्ला रहा था, डॉग को बोल रहा था कि डोंट गो देयर, या फिर जो डॉग बार्क कर रहा था उसकी वजह से जो ऑस्ट्रिचेस थे वो डिस्टर्ब हो गए और वो इधर उधर सारे के सारे ऑस्ट्रिचेस निकल कर आ गए. नाउ पेज 101. सडनली आई सॉ अ बिग मेल बर्ड इमर्ज फ्रॉम अ thicket about 100 yards away. He stood still and stared at me for a few moments. I stared back, then expanding his short wings and with his tail erect, he came toward me. उन्होंने क्या देखा कि 100 yards दूरी पर, yards is a also a distance measuring, we measure distance in yards, so it is a unit of measuring distance. वहाँ पर एक ऑस्ट्रिच खड़ा होता है और he was staring at ग्रैंडपा. वो ग्रैंडपा को स्टेयर कर रहा था, घूर रहा था, और ग्रैंडपा ने भी उसको कुछ देर के लिए घूरा. फिर क्या होता है, जो ऑस्ट्रिच था उसने अपने शॉर्ट विंग्स को एक्सपैंड किया, फैलाया, और अपनी जो टेल थी उसको इरेक्ट किया, और वो फट किधर आने लगा, ग्रैंडपा की तरफ. एज आई हैड नथिंग, नॉट इवन अ स्टिक विद विच टू डिफेंड माई सेल्फ, आई टर्न एंड ran towards the fence, but it was an unequal race. What were my steps of 2 or 3 feet against the creature's great strides of 16 to 20 feet? There was only one hope, to get behind a large bush and try to dodge the bird until help came. A dodging game was my only chance. क्या होता है कि अब ये देखकर जो ग्रैंडपा थे वो भागे. वो कहते हैं कि मैं भागा फेंस की तरफ, और बट जो रेस थी, जो ये रेस थी, रेस वॉज बिटवीन ग्रैंडपा एंड ऑस्ट्रिच. वो अनइक्वल थी. वाई इट वॉज अनइक्वल? क्योंकि जो ग्रैंडपा थे वो तो 2-3 स्टेप्स रन कर पा रहे थे, और जो ऑस्ट्रिच था वो 16 to 20 फीट, बिकॉज दे आर हैविंग वेरी लॉन्ग, वेरी टॉल लेग्स ना, उनकी लेग्स बहुत टॉल होती हैं, तो वो इतना दूर दूर, जितने में वो 2-3 स्टेप करते थे उतने में उसके 16 to 20 फीट हो जाते थे. लेकिन बुशेस के पीछे जाने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था. सो आई रश्ड फॉर द नियरेस्ट क्लम्प ऑफ थॉर्न बुश एंड वेटेड फॉर माई हंटर, एंड द ग्रेट बर्ड वेस्टेड नो टाइम, ही वॉज सून देयर. अब वो फटाफट से भागकर बुश की तरफ जाते हैं, जो थॉर्नी बुशेस थे, कांटों वाले बुशेस, लेकिन जो ऑस्ट्रिच थी वो विदाउट वेस्टिंग हिज टाइम वो वहाँ पर जल्दी से आ जाता है. देन द स्ट्रेंजेस्ट बैटल टुक प्लेस. अब उन दोनों के बीच में एक बैटल होती है, युद्ध होता है. आई डॉज दिस वे दैट एंड दैट टेकिंग ग्रेट केयर नॉट टू गेट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द ऑस्ट्रिच डेडली किक. और वो कहते हैं कि जिससे मैं उसकी किक, डेडली किक मीन्स वो इतनी तेज किक करती है कि लायन भी मर जाता है, तो फिर वो ऐसा किक करे, इसलिए मैं उसके सामने नहीं आना चाहता था. और ऑस्ट्रिचेस किक फॉरवर्ड एंड विद सच टेरिफिक फोर्स दैट इफ यू वर स्ट्रक their huge chisel like nails would cause you much damage. अगर वो आपको मारेगी, अगर ऑस्ट्रिच आपको मारता है, अपने नेल्स के साथ हिट करता है, किक करता है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी स्ट्रक हो जाएगी. आई वॉज ब्रीथलेस एंड रियली क्वाइट हेल्पलेस, कॉलिंग वाइडली फॉर हेल्प एज आई सर्कल द थॉर्न बुश. अब क्या होता है, वो जो ग्रैंडपा थे वो ब्रीथलेस हो जाते हैं और क्वाइट हेल्पलेस हो जाते हैं. उनके पास कोई वो नहीं होता कि वो कैसे अपने आप को बचाएं. तो वो जो बुशेस थी उसके चारों तरफ ना चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं. आई बिगेन टू फील वीक. हाउ मच लॉन्गर कुड आई कीप गोइंग? आई वॉज रेडी टू ड्रॉप फ्रॉम टायर्डनेस. अब वो इतना घूमते हैं, उस ऑस्ट्रिच उनके पीछे पीछे घूमती है सर्कल में, वो इतना थक जाते हैं. ही वॉज फीलिंग टायर्ड, और उनको लगता है कि अब पता नहीं मैं कितनी देर और ऐसे रन कर पाऊंगा. सडनली द एंग्री बर्ड charged straight at me. Somehow I jumped to one side. I don't know how, but I found myself holding on to one of the bird's wing quite close to its body. अब कहते हैं कि ऐसे चक्कर काटते काटते पता नहीं कब बर्ड मेरे सामने आ गई और मैंने एकदम से दूसरी साइड जंप लगाई. अब जंप लगाने के बाद उन्होंने देखा कि जो बर्ड के विंग्स थे, एक साइड के विंग्स थे, वो उनके हैंड में आ जाते हैं. इट वॉज नाउ द ऑस्ट्रिच टर्न टू बी फ्राइटेड. अब किसका टर्न था डरने का? ऑस्ट्रिच का. ही बिगेन टू टर्न अ डांस अ वेव, मूविंग अराउंड एंड राउंड सो क्विकली that my feet were soon swinging out from his body almost horizontally. All the while the ostrich kept opening and shutting his beak and with loud snaps. अब क्या होता है, जो ostrich थी वो घूमने लगती है, एक मतलब गोल 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 घूमने लगती है, बिकॉज जो ग्रैंडपा थे उन्होंने उसके विंग्स पकड़े हुए थे. इमेजिन माई सिचुएशन एज आई क्लंग डेस्परेटली टू द विंग ऑफ द एनरेक बर्ड. ही वॉज स्विरलिंग मी राउंड एंड राउंड एज दो ही वर अ डिस्कस थ्रोअर एंड आई द डिस्कस. माई आर्म सून बिगेन टू एक विद द स्ट्रेन. अब उन्होंने इतनी तेज पकड़ा हुआ था और जो
ऑस्ट्रिच थी वो गोल 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 घूमे जा रही थी, तो उनको लग रहा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। एंड द स्विफ्ट एंड द कॉन्टिन्यूअस सर्कलिंग वॉज मेकिंग मी डिजी। और जो वो स्विफ्ट मतलब एकदम से टाइट और कॉन्टिन्यूअस सर्कलिंग थी, लगातार जो वो घूम रही थी, उसकी वजह से मुझे चक्कर आने लगी। बट आई न्यू दैट इफ़ आई रिलैक्स्ड माई होल्ड इवन फॉर अ सेकेंड अ टेरिबल फेट अवेटेड मी। बट उनको पता था कि अगर मैंने एक सेकेंड के लिए भी अपना हाथ छोड़ दिया तो कुछ बहुत मुश्किल आने वाली है। राउंड एंड राउंड वी वेंट इन अ ग्रेट सर्कल, इट सीम्ड एज इफ द बर्ड वुड नेवर टायर। ऐसा लग रहा था कि जो बर्ड है वो कभी भी थकेगी नहीं। एंड आई न्यू आई कुड नॉट होल्ड ऑन मच लॉन्गर। और मुझे पता था कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ पाऊंगा। सडनली द ऑस्ट्रिच वेंट इन टू रिवर्स। अभी तक जैसे वो घूम रही थी, अब उसने उसके रिवर्स में घूमना स्टार्ट कर दिया बर्ड ने। दिस सडन मूव मेड मी लॉस माई होल्ड एंड आई फेल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। इसकी वजह से मेरा हाथ छूट गया, जो मैंने उसके विंग्स पकड़े हुए थे, और मैं ग्राउंड पर गिर गया। Even before I had time to realize what had happened, the big bird was upon me. अब मैं कुछ रियलाइज करता, कुछ फील करता है कि अरे ये क्या हुआ, तब में मैंने देखा, नोटिस किया कि बर्ड जो थी वो मेरे बिल्कुल पास थी, मेरे ऊपर थी। आई थॉट द एंड हैड कम। मुझे लगा कि अब तो मौत निश्चित है। आई रेज माई हैंड्स टू प्रोटेक्ट माई फेस बट द ऑस्ट्रिच डिड नॉट स्ट्राइक। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अपने फेस को कवर किया, बट द ऑस्ट्रिच डिड नॉट स्ट्राइक। आई मूव माई हैंड्स फ्रॉम माई फेस एंड देयर स्टूड द क्रीचर विद 1 foot रेज्ड। उन्होंने देखा जो क्रीचर है वो अपना 1 फुट रेज करके खड़ी हुई है, रेडी टू डिलीवर अ डेडली किक। आई कुड नॉट मूव। कि वो वाई ही वॉज रेजिंग हिज फिट, क्योंकि वो उनको किक करना चाहती थी। एज आई वॉच फ्राइटेंड द ऑस्ट्रिच टर्न्ड हिज हेड शार्पली टू द लेफ्ट। अब एज आई वॉच फ्राइटेंड, जैसे मैं डरा हुआ था, ऑस्ट्रिच भी डरी हुई थी। ऑस्ट्रिच ने अपना हेड एकदम से लेफ्ट की तरफ टर्न किया। अ सेकेंड लेटर ही जम्प्ड बैक, और उसने ऑस्ट्रिच ने जंप बैक किया, टर्न एंड रन अवे एज फास्ट एज ही कुड गो। और वो इतनी तेज भागा जितनी तेज वो भाग सकता था। कन्फ्यूज आई वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड। आई वॉज कन्फ्यूज कि क्या हुआ। आई सून फाउंड आउट टू माई ग्रेट जॉय आई हर्ड अ बार्क ऑफ माई डॉग एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज जम्पिंग अराउंड मी लिकिंग माई फेस एंड हैंड्स। आई ग्लेडली रिटर्न ऑल द अफेक्शन। अब इतने में ही वो खुश हो, ही वॉज वेरी हैप्पी कि उनको अपने डॉग की बात सुनाई दी, और वो फटाफट से उनका डॉग आया, उनको ही स्टार्टेड लिकिंग हिज face and his hands, and I gladly returned to all the affection. This was the story. Read it carefully and watch the video carefully. Thank you.